Deepak Sharma is with us, who has played a great role in science, popularization of science among society, among children. He has worked in this field for last 30 years. He has been immensely awarded and recognized for his work. He was given National Award for Outstanding Efforts in Science and Technology Popularization among community by Department of Science and Technology, Government of India. He was given another award called Rajendra Prabhu Shield in Science, Media and Journalism in 2020. He was the only organization that made the Analema Solar Watch in Asia and first time in India. He is also running India's first science channel called Vigyan Aao Karke Seekhe. Friends, if you visit there, I think Dr. Deepak will explain some of his activities. But he has been immensely engaged in science communication activities for last many years, and he is the first teacher in history from Asia who was invited by European Science Meet in France. He is also Indian coordinator for Earth experiments. He was given the Best Coordinator Award by NCSTS Department of Science and Technology. He has regularly delivered talk on Vigyan Vartaएं on All India Radio for last 15 years. He was also given Vigyan Ratna Award for popularization of science. And yes, friends, he is also a performer and actor. He played a leading role in a serial called Bach Ke Rehna Baba as a scientist. If some of you have seen that serial, how beautiful role he has, excellent role he has played in this thing. He was also a magazine he is publishing called Vigyan Aao Karke Seekhe for last 5 years. He organized World Science Fair Vigyan Ghar in 2015. And yes, one more achievement I will tell you, that in 2004 when Venus made the transition, he made a history by measuring the distance from Earth to Sun. So and first time he also made math and science in music form. I have never heard that how math could be presented in a musical form. So he has made many films and documentaries. So we are very grateful, sir. You are today with us. Our Science Policy Center, basically we are involved in interface between science and society. So you are the most appropriate persons for today's occasion. Professor Sharma, Deepak Sharma ji, please. बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये साइंस कम्युनिकेशन की जो बात हो रही है, माधव सर, ये जो शुरुआत अगर हम देखें जी, साइंस कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों पड़ गई हमको, एक सवाल मुद्दा ये आता है कि क्या खास बात थी जिसके कारण से हमें जरूरत पड़ी और महसूस हुआ कि हम लोग जो है इस पर काम करना चाहिए। जी, शुरुआती दौर में देखें, आपसे 100 साल पहले एक बीमारी आई थी, याद हो, प्लेग की बीमारी आई थी, और लगभग इतिहास में जाए तो हर 100 साल में एक बड़ी महामारी आती है, जिस तरह से अभी इस साल कोरोना भी आया, कोरोना काल भी इस साल का बीता 100 साल के बाद में। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, और काला ज्वार भी आया और कई सारी बीमारियां हैं। तो लोगों को बहुत सारी चीजों की समझ ना होने से नुकसान बहुत ज्यादा होता है, और समझ ना होने का एक छोटा सा एक 1903 अप्रैल शायद डेट है, 1984 1984, आपको भोपाल गैस त्रासदी कांड याद होगा। और अचानक ही सुबह लोग भाग रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता समझ में आ रहा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं इस समय। वो जो गैस का रिसाव था वो इतना खतरनाक था कि उनकी जान ले रहा था, और लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे थे बदहवास की स्थिति में ऐसा सॉल्यूशन क्या हो, जब इस तरह से गैस की प्रॉब्लम हो या आपको सफोकेशन हो रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। उसका एक सिंपल सा लॉजिक था, अगर उनको साइंटिफिक टेम्परेचर उतनी समझ होती तो उन्हें सिर्फ कुछ नहीं करना था, एक गीला टॉवल लेना था और अपने मुंह पर रखना था, या कोई भी गीला कपड़ा लेना था उसे अपने मुंह पर रखना था। ये जानकारी बाद में लोगों को समझ में आई कि हमें ऐसा करना चाहिए था, लेकिन ऑन द स्पॉट वो चीज का डिसीजन नहीं ले पा रहे थे वो लोग। ऐसे ही इतिहास में पुरानी चीजों में जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जो, अभी आप देखें कि हर साल नई नई चीजें आती जा रही हैं,
हर 15 या कुछ महीनों के बाद में आपका जो मोबाइल है वो चेंज हो जाता है, वो परिवर्तन कर लेता है। और फिर आप अगर देखेंगे, और मैं जितने भी लोग हैं मेरे ख्याल से उनमें से कितने % लोग हैं जो अपने मोबाइल के सारे फंक्शन जानते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ऐसी परिस्थितियों में जिस तरीके के साथ दुनिया बहुत तेजी के साथ परिवर्तन कर रही है और चीजें परिवर्तनशील हो रही हैं, ऐसे में उनके बारे में कम से कम उन्हें चलाना तो आना चाहिए। जब शुरुआती दौर में कंप्यूटर आया, विजय भाटकर जी ने हमारे देश का सबसे बड़ा कंप्यूटर भी बनाया, सुपर कंप्यूटर बनाया, तो ऐसी परिस्थिति में कंप्यूटर चलाने की प्रॉब्लम्स आई। अभी अगर आप मैक्सिमम बात करें तो मोबाइल में भी यही सारी चीजें हैं। बहुत सारे लोगों को तो केवल उसे फोन को डायल करना और उसको बात करना ही आता है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें नहीं आती। अब इसके साथ साथ सोशल मीडिया और दूसरी चीजों के साथ जुड़ रहे हैं लोग बाग, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो उसके साथ हमको अपडेट करने के लिए इस साइंस कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ी। दूसरा एक चीज और बिंदु आ गया कि जो साइंटिस्ट रिसर्च डेवलप कर रहे थे वो उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही क्लिष्ट भाषा थी। वो अपने मतलब एक कहना चाहिए कि उसकी जो लैंग्वेज थी वो एक सरल भाषा नहीं थी, वो आपकी मदर टंग में नहीं थी। अगर आप यूरेका की बात करें, रामानुजन के मैथमेटिक्स के सिद्धांतों की बात करें या आर्यभट्ट की बात करें, तो उन्होंने जिस लैंग्वेज में उन सारी चीजों को लिखा वो उसी लैंग्वेज को एज इट इज आम जनता के बीच में अगर परोस दिया जाए तो शायद लीलावती का गणित है जैसे, तो उनको आम आदमी नहीं समझ सकता। अगर रामचरित के मानस की बात की जाए तो आपको याद होगा कि तुलसीदास ने उसको सरल भाषा में लिखा, तब लोगों ने रामचरित मानस को समझा या पढ़ा उसको, क्योंकि उसने एक भाषा को इजी कर दिया आसानी से। इसी प्रकार से कोई भी चीज है तो उसकी चीजों की समझ को सरल भाषा में दो चीजें यहां आ रही हैं। एक तो ये कि चीजें बहुत तेजी के साथ बदल रही हैं, और वो जो चीजें बदल रही है तो उनके साथ साथ में हमें भी अपडेट रहना पड़ेगा, जीवन के साथ साथ चलना पड़ेगा, जो कि चलने में जरूरी है कि सभी लोग चलें, तभी हमारा कम्युनिकेशन का एक जो माध्यम है वो बढ़िया हो पाएगा। दूसरी बात यह है कि ये इसकी बात आई, कहना चाहिए कि समय के साथ में और टेक्नोलॉजी के लेवल पर भी हमें आगे जाना पड़ेगा। दूसरा, भाषा को भी देखना पड़ेगा। जितना आसान तरीका भाषा के माध्यम से हम आसानी से कोई सी चीज को पहुंचा पाएंगे, बता पाएंगे, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब उसमें इसलिए जरूरत पड़ी साइंस कम्युनिकेशन की, और उसके लिए साइंस कम्युनिकेशन और पॉपुलराइजेशन के लोगों के बीच में ज्यादा बढ़िया हो, तो 87 में डीएसटी का एक सेल नया डेवलप हुआ जिसका नाम था एनसीएसटीसी, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। तो ये जब ये तैयार हुआ, डेवलप हुआ, उसके जो हेड थे उस समय में मैं कहूं तो भारत में साइंस कम्युनिकेशन को लाने वाले, उस तरीके से पहली बार स्थापित करने वाले और दिल से तैयार करने वाले वो डॉक्टर नरेंद्र सहगल थे। शायद अभी तो, हालांकि उनकी डेथ हो चुकी है अभी रिसेंटली, आपने जाना होगा उनके बारे में। और इन सारी चीजों के बीच में कई सारी चीजें सामने आई। फिर बाद में आया ये कि ठीक है कि एक तो भाषा की बात आ गई कि कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए। दूसरी बात ये आ गई कि कम्युनिकेशन जरूरत क्यों थी, ये भी बात समझ में आ गई कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई अचानक महामारी आ जाए या कोई विपदा आ जाए, तो हम उस चीजों को बताएं कैसे उन्हें। अब ये तो है नहीं कि स्कूल में तुरंत तत्काल स्कूल खोले जाए और सब जगह इकट्ठा करा जाए, उनको बता दिया जाए, तो वो तो बहुत व्यवहारिक नहीं है। उत्तराखंड में जो भूकंप आया था, याद हो आपको, 91 के आसपास में, तो जब आया था अक्टूबर का शायद महीना था, वो अक्टूबर नवंबर के आसपास में आया था 91 में। तो उस समय में लोग, दूसरी बात यह कि सारे लोग स्कूलों में जाकर अपडेट नहीं कर पाते, वो तो स्कूल में जो परंपरागत ट्रेंड है वही चलता रहेगा। तो आम जन मानस को भी इस सारी चीजों के साथ जोड़ के रखना पड़ेगा, और उसको जोड़ा कैसे जाए ये हमें देखना पड़ेगा, और तब हमको सारी चीजें समझ में आएंगी। तब उसके लिए बहुत सारा सोचा गया और माध्यम तैयार किए गए, बहुत सारी विधाएं तैयार की गई। सबसे आसान, और आपको याद होगा
कि सबसे आसान और सरल विधा थी हमारे पास में रेडियो। रेडियो एक ऐसा माध्यम था जो तुरंत एकदम कम समय में सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार कर सकता था, अपने देश की डिसीजन को बता सकता था कि किसी ने देश पर हमला कर दिया है, सब लोग सावधान हो जाओ, ब्लैकआउट कर दीजिए, कोई लाइटें ना जलाइए, जैसा कि 71 और 72 में हुआ, सन 71 की लड़ाई में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, तो इन सब चीजों का बहुत बड़ा रोल हो गया था उसमें। इसके अलावा, रेडियो के अलावा, यानी कि प्रसारण और संप्रेषण, अब तो बाद में टीवी भी आ गया, अब उस दुनिया ने, उस जो नई पीढ़ी है उस काल ने तो टीवी भी देख लिया। आपका रेडियो आ गया, आपका टीवी आ गया, आपका मोबाइल आ गया, और मोबाइल पर सोशल मीडिया बहुत सारा आ गया। लेकिन इसके अलावा और कई सारी विधाएं थी जो लोग अनपढ़ हैं या दूर दराज के गांव के हैं और चीजों को आसानी से समझ नहीं पाते हैं, अगर आप उन्हें अंग्रेजी भाषा में या आप साइंटिफिक भाषा में बोलेंगे तो मेरे ख्याल से उन्हें समझ में भी नहीं आएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, या कोई केमिकल रिएक्शन ही वो उनको बताने लगे तो मुझे नहीं लगता कि उनको समझ में आ पाएगा कि वो क्या बोल गए। उन्हें सीधी बात ये समझ में आएगी कि जब गैस का रिसाव हो तो मुंह पर तौलिया गीला करके रख लीजिए, तो आपको उस गैस का नुकसान कम से कम होगा और फिल्टर होके होगा और आपकी जान बच सकती है। ऐसे में तो ये इस तरह की चीजों को किया जा सकता है। तो उसके लिए माध्यम कई सारे बनाए गए, लोकगीत बनाए गए, नारे लिखे गए, स्लोगन्स लिखे गए, आपका टीवी हो गया, नाटक हो गया, आपका कठपुतली हो गया, पपेट शो हो गया, इस तरह की विधाओं को यूज किया गया। मीडियम्स बने, माध्यम बने, जिन्होंने साइंस कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाया और कंप्लीट किया। लेकिन इसके साथ साथ एक रोल और भी महत्वपूर्ण था जो लेखन का था, और जब लेखन की बात आई तो उसको कहना चाहिए कि एक बूस्टअप देने का काम जो किया वो डॉक्टर मनोज पटेरिया जी ने किया। वर्तमान में मनोज पटेरिया जी डीएसटी का ही एक हिस्सा हैं, और लेखन को उन्होंने जिस रूप में जहां ले जाकर साइंस कम्युनिकेशन को ले जाकर इंडियन साइंस राइटर एसोसिएशन और इन सब चीजों को डेवलप किया, और देश और दुनिया के अंदर जिस तरह से पहले पीएचडी, और मेरे ख्याल से पीएचडी शायद शुरुआती दौर में नहीं थी, साइंस कम्युनिकेशन में नहीं थी पीएचडी, ये सब्जेक्ट भी बाद में डेवलप हुआ, 95 के आसपास में हुआ। माधव साहब, अगर मैं सही हूं तो 95 के आसपास हुआ क्या पीएचडी वाला? जी सर, जी 95 के आसपास में पीएचडी शुरू हुआ, इक्का दुक्का लोग पीएचडी करने लगे साइंस कम्युनिकेशन, और फिर इस फील्ड को सीरियसली लेने लगे। लेकिन अभी भी इन सब चीजों के साथ में जो ये सारी चीजें हो रही हैं, और ये जो विधाएं और माध्यम बने, जैसे कंप्यूटर आ गया, और उसके बाद में फिर अब टेक्नोलॉजी में बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं तेजी के साथ में, जैसे क्लाउड आ रहा है, आपका ये कम्युनिकेशन का अभी लॉकडाउन में बहुत सारी चीजों का इन्वेंशन हुआ जो लोगों के बीच में आया। शायद इससे पहले लोग जानते भी नहीं थे, बहुत लिमिटेड था दायरा गूगल मीट का, माइक्रोसॉफ्ट मीट का, या जूम ऐप का, इस तरह के जो जिस पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इस तरह की चीजें लॉकडाउन के बाद प्रचार प्रसार में आई। चलन में नहीं थी, लिमिटेड थी, केवल ऑफिशियल मीटिंगों के लिए थी, या कहीं पर बहुत आधिकारिक चीजें हो रही हैं तो तभी इनका इस्तेमाल होता था। आम जनता के लिए, आम जनजीवन के लिए ये सारी चीजें नहीं थी। तो इस लॉकडाउन ने और इस कोरोना काल की इस महामारी ने भी हमारे कम्युनिकेशन स्किल को भी एकदम बदल दिया, आम आदमी के लिए भी, और हम देखें तो ये आम आदमी के लिए ही जरूरी था। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो इन सब चीजें जब आ रही थी तो इनके साथ साथ में इनके साइड इफेक्ट भी आ रहे थे। जब हम कहना चाहिए सोशल मीडिया पे आए, आप व्हाट्सएप पे आए, यूट्यूब पर आए, और दूसरे और बहुत सारे हैं, फेसबुक है, और दूसरी बहुत सारी चीजें हैं, ट्विटर है, और अब तो बहुत सारी चीजें नई डेवलप हो गई हैं जो पहले से बदल गई हैं। तो इन सब चीजों पर भी आए। लिखने पढ़ने वाले, जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, उनके लिए तो जर्नल का एक माध्यम बन गया अपनी बात को कहने और रखने का। आम जनजीवन के लिए सोशल मीडिया से बेस्ट और तेज गति से चीजों को वायरल करना या उनको फैलाना का काम वो एक अच्छा कर सकता था। हाँ, इसके साइड इफेक्ट भी आए। अगर चैलेंज के दृष्टिकोण में देखा जाए तो इसके साइड इफेक्ट भी आए, जैसे
आपका क्लाउड अभी भी लोगों को बहुत लिमिटेड दायरे में है, बहुत ज्यादा पब्लिसिटी और प्रचार प्रसार में नहीं आया है। मतलब कहना चाहिए एलिट एरिया के लिए अभी लोगों के लिए है ये क्लाउड सिस्टम का। लेकिन आपका जो इंटरनेट सिस्टम है, जिस इंटरनेट ने तेजी बढ़ाई और लोगों तक पहुंचने का काम करा, जो ऑल इंडिया रेडियो और इंटरनेट ने और व्हाट्सएप ने, लेकिन उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम आई हमारी सिक्योरिटी को लेकर। ये सारी चीजों के साथ साथ में ये सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आने लगी और सिक्योरिटी के साथ साथ लोगों के अकाउंट खाली होने लगे, तो ये बड़ा खतरनाक हो गया था। तो ये एक कहना चाहिए कि ये गोली के साथ दवा का जो नई दवा आई उसके साइड इफेक्ट थे। और मुझे लगता है कि इन सब साइड इफेक्ट के साथ में अब ये तो है नहीं कि अगर छाता ना खुला तो पैरासूट जंप करने वाला जो पैरासूट जंपर है वो पैरासूट में जंप ही नहीं करेगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर प्लेन का ऊपर इंजन बंद हो गया तो लोग फ्लाइट में जाना बंद कर देंगे, तो जिंदगी तो चलेगी। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स और दिक्कतें भी आई, लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ में ये सारी चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। हाँ, हमें सावधान रहना पड़ेगा और उसके साथ में हमें जिंदगी के साथ आसपास वातावरण में जो कुछ हो रहा है उस सारी चीजों को समझना पड़ेगा। ये भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। अभी वर्तमान में अगर देखें, मेरे पास एक उदाहरण आ रहा है साइंस कम्युनिकेशन का। एक विदेश का था, छोटा सा मछली का था एक देश का, मैं भूल गया उसका नाम। अचानक वहां एक अफवाह फैल गई थी साइड इफेक्ट के रूप में कि साहब वो मछली में ये बीमारी है और इसलिए मछली नहीं खाना चाहिए। अभी जैसे बर्ड फ्लू का प्रॉब्लम आया था शुरुआती दौर में, तो लोगों ने एकदम से उस मछली को खाना बंद कर दिया और वहां गेहूं नहीं होता, तो लोगों की स्थिति बड़ी खराब हो गई क्योंकि भोजन का अकाल सा पड़ गया एकदम से। फिर साइंटिस्ट कुछ लोगों ने रिसर्च किया, वास्तव में जाना कि क्या वास्तव में इसमें इस तरह की प्रॉब्लम है, जिस तरह की बीमारी है, लाल चकत्ते हो गए हैं इस पे मछली पर, तो ये खाई जा सकती है, नहीं खाई जा सकती है। लेकिन जब उसमें पाया गया तो कहने लगे कि इसमें नुकसान कुछ नहीं है। वो लाल चकत्ते देखकर उन्होंने ये समझा कि इसका नुकसान है और ये बीमार कर देगा, आपको जहर है और ये मर जाएंगे लोग खा के, भूखे मर जाएंगे वैसे ही। तो इस अफवाह का निस्तारण साइंस कम्युनिकेशन के माध्यम से ही हुआ और लोगों ने समझ लिया उसे। अगर नहीं समझते तो दिक्कत आती इसमें। इस साइंस कम्युनिकेशन में अब एक बड़ी प्रॉब्लम भी साथ साथ आ रही है कि साइंस कम्युनिकेशन लोग कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो साइंटिस्ट ही हो, ये भी जरूरी है कि वो प्रचार प्रसार करें, लोगों तक पहुंचाएं उसको, अलग अलग बातें हमसे जैसे विधाएं हम लोगों ने बताई, उसका यूज करके आम जनता में लोकल भाषा में बात करते हुए हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। टीवी ऑडियो वीडियो एड का यूज कर सकते हैं, हम टीवी पर बात कर सकते हैं, ऑडियो में बात कर सकते हैं, लेखन में बात कर सकते हैं, पत्रकारों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं और उनका बात भी कर सकते हैं। लेकिन अब एक प्रॉब्लम ये है जो अभी हमारे देश में चैलेंज है, खास तौर से इंडिया के लिए। पहली बात तो यह है कि टेक्नोलॉजी में इंटरनेट तो आ गया, लेकिन स्पीड, हालांकि अभी 5G आ गया है लगभग, वो लेकिन 5G भी अभी बहुत तेजी के साथ नहीं आया है भारत में, सब जगह नहीं आ गया है, लेकिन जो बड़े शहर हैं उनमें आ गया। अभी छोटे शहरों में जाना जरूरत है, तो अभी इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ने की जरूरत है, वो स्लो ना रहेगी तो भी दिक्कत रहेगी। दूसरा, जो इंटरनेट की प्रॉब्लम्स आ रही है और ये कहना चाहिए सोशल मीडिया के जो साइड इफेक्ट्स हैं, इसके लिए कानून बनने की बहुत सख्त जरूरत है। जिस तरीके से अफवाहों को गलत तरीके से प्रचार प्रसारित किया जाता है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक बंदर के हाथ में उस्तरा दे दो हैं, और अगर वो उस्तरा बंदर को नहीं पता, वो अपने मार ले या दूसरे के मार दे। इसी प्रकार से उसका स्क्रीनिंग होना बहुत जरूरी है। यूट्यूब पर भी कुछ भी आप डाल दीजिए, कोई स्क्रीनिंग नहीं हो रही है, केवल कुछ लिमिट नॉर्म्स बना दिए उन्होंने कि ऐसा कुछ होगा, कॉपी नहीं करेंगे या कॉपीराइट नहीं होगा, ये चीजें नहीं होंगी, तो इन चीजों को हम, इन शब्दों को यूज करने वालों को हम पकड़ लेंगे,
इस तरह की वीडियो को हम हटा देंगे, ठीक है, स्क्रीनिंग हो रही है, लेकिन उस लेवल पर अभी नहीं हुई है कि उसमें ये ढूंढना कि जो तथ्य दिए जा रहे हैं आजकल, जैसे हेल्थ को लेकर यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं, लोग बहुत सारी सलाह दे रहे हैं। अब ये नहीं पता कि वो सलाह देने वाला कितना क्वालिफाइड है, ये कितनी समझदारी की बात कर रहा है। उसने कोई गलत सलाह दे दी तो लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया, तो वो तो खतरनाक हो जाएगा उसके लिए। और लोगों को अंधविश्वास जो था, कहना चाहिए कि एक ब्लाइंडली, जैसे आपसे 20-25 साल पहले याद हो आपको, माधव सर, हो सकता है आपको याद हो, आपको बचपन में, कि जब गणेश जी ने दूध पिया था, और मेरे से बहुत लोगों ने बहस की थी, मैं क्या कहूं, लोग मुझे लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए थे, हम लोगों से एकदम अटैकिंग मूड में। मैं उन्हें समझा रहा था कि गणेश जी दूध ये इस तरह से नहीं पी सकते, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थे। तो वो चीज और वो समझ सोशल एनवायरनमेंट में भी जाना बहुत जरूरी है कि ना तो नीम दूध टपका सकता है, दूध दे सकता है आपको, और ना गणेश जी दूध पी सकते हैं।